Today we will discuss exercise 2.2, chapter 2 NCERT, polynomials. Okay. So here we have to find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients. यहाँ पे बेटा हम लोग को जीरोस फाइंड करना है और उनके रिलेशन भी वेरीफाई करने हैं इनके कोफिशिएंट्स के साथ. ओके. हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके. एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट class. Okay, so today we will discuss only how to solve these questions. Okay, today we will only cover the exercise. Let's move to the first question. First question: x square minus 2x minus 8, x square minus 2x minus 8, that we will equate it by 0 because we have to find its 0. तो हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे. नाउ बाय फैक्टराइजिंग इट, हम इसका जीरोस कैसे निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसको फैक्टराइज करके. ओके बेटा, तो इसको फैक्टराइज करिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इक्वल्स टू plus 8 equals to 0. Now taking x common from these two terms, x minus 4 1 minute beta, actually this is minus 8 not plus 8. Now taking plus 2 as a common, x minus 8 will be there equals to 0. Sorry. X minus 4 will be there equals to 0. Taking x minus 4 as a common, x plus 2 will be there. Okay. Equals to 0. Now as we have to find the zeros, now factorization is done. Factorization तो हो गया लेकिन zeros निकालने हैं, तो we will equate this and this one by one with 0. X minus 4 equals to 0, then x is equals to 4 and x plus 2 equals to 0. This makes x is equals to minus 2. So x is equals to minus 2 and x is equals to 4. These are the two zeros of this polynomial. Okay. Now we have to verify the relations also. हमें relation भी verify करना है. So let's do it. इसको भी verify करते हैं. Okay. What are the relations beta? The relations are beta coefficient of x sum of the zeros is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Okay, so let's verify it. Sum of the zeros means 4 plus minus 2 minus coefficient of x, minus coefficient of x is minus 2 upon 1, that will be equals to 2 equals to 2.
verified. I have taken 1 in place of coefficient of x square because here coefficient of x square is 1. If there is no coefficient written there, you will take 1 as a coefficient of x square. Okay. So now there are two relations, sum of the zeros and product of the zeros. Sum of the zeros is verified. Now we have to verify product of the zeros. Okay. So let me verify that also. Another relation is product of the zeros. Product of zeros is equals to product of zeros is equals to constant upon coefficient of x square. Okay, constant upon coefficient of x square. Right beta? Constant upon coefficient of x square. So now let us verify. Product of the zeros means we will find the product of the zeros. Zeros are 4 and minus 2. So find the product of 4 and minus 2. Constant is minus 8. Coefficient of x square is 1. Now it becomes minus 8 and this also becomes minus 8. Verified. Okay. So let's move to the next question. In this question, similar one, 4s square minus 4s plus 1. So first of all we will equate it by 0. Now we will break it. Four s square minus 2s plus 1 equals to 0. इसको क्या कर रहे हैं पता है ना, ये फैक्टराइज कर रहे हैं बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर रहे हैं. टेकिंग 2s कॉमन. अच्छा देखो, जिनको कॉमन लेने नहीं आ रहा है उनके लिए भी, अब इस मान लो कि उनको अगर ये सोचना हो कि भाई इसमें क्या कॉमन लें या इसमें क्या कॉमन लें, तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले इन दोनों को आप लिख लो. इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इन दोनों को लिख लो. 4s स्क्वायर को कैसे लिखेंगे आप, इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. 2 इंटू टू इंटू एस इंटू एस, ये हो गया 4s स्क्वायर की जगह. और माइनस 2s की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस 2s की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 2 इंटू एस. तो कॉमन क्या आ रहा है बताइए. एक तो कॉमन आ रहा है s दोनों में, और दूसरा 2 भी कॉमन आ रहा है. सॉरी, दूसरा 2 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन नहीं है. ठीक है. तो आप इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं. क्या कॉमन है, 2s. देखिए दोनों में 2 कॉमन है और s भी कॉमन है. तो हमने 2s को कॉमन निकाल लिया. अब बच क्या रहा है, 2s को कॉमन निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं बच रहा, माइनस है सिर्फ. तो इसमें क्या बच रहा है, सिर्फ माइनस. तो -1 लिख लेंगे उसको. और 4s स्क्वायर में क्या बच रहा है, 2 और s को निकालने के बाद 2s. तो 4s स्क्वायर में क्या बच रहा है बेटा, 2s बच रहा है. और इसमें -2s में क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, माइनस है. तो -1 लिखेंगे आप, है ना, ये. ठीक है. अब इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है ये भी देखना है. तो फिर से देख लेंगे. -2s लिख लीजिए, -2 इंटू एस,
और इसमें क्या है, ये तो +1 है, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे 1। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, तो 1 को तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, ये 1 और ये 1 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है। तो 1 कॉमन है मीन्स +1 कॉमन है, साइन के साथ ही लिखना होगा ना जब भी लिखेंगे आप तो यहाँ -1 तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे +1, तो +1 कॉमन है, तो यहाँ +1 लिख दीजिए आप। और +1 कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचा है -2s, ठीक है, इसमें क्या बचा है -2s, और इसमें क्या बचा बेटा +1 = 0। अब आप देख सकते हैं यार बेटा, थोड़ा सा दिमाग अपना थोड़ा लगाइए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ये 2s -1 है, ये -2s +1 है, दोनों में साइन अलग है ना, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस +1 को अगर -1 कर दें आप, मीन्स जो कॉमन +1 आपने लिया है, अगर आप -1 कॉमन लेते, क्या कॉमन लेते -1, तो ये साइन उल्टा हो जाती ना, जो प्लस है जो माइनस है वो प्लस हो जाता, जो प्लस है वो माइनस हो जाता, तो सेम इसकी तरह हो जाता, फिर वो कॉमन आ जाता। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, तो इसलिए हम ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे अब यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि ये गलती हो गई है, +1 कॉमन नहीं लेना था, क्या कॉमन लेना था -1, तो हम -1 को कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच रहा है -1 कॉमन लेने के बाद वो 2s हो जा रहा है और ये -1 बच रहा है। आप ऐसे समझ लेना कि अगर +1 कॉमन लेने पे जो आया था, -1 कॉमन लेने पे वही नंबर रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगी उसकी, बस। ऐसा कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि 2s -1 2s -1 दोनों सेम होगा, तब तो इसको कॉमन आउट करेंगे ना। अब 2s -1 कॉमन आ गया, तो 2s -1 इसमें से निकाले तो क्या बचा 2s, और इधर क्या बचा -1, देखिए 2s -1 2s -1, ये इसमें भी =0 लगाइए, इसमें भी =0 लगाइए। अब जीरोस फाइंड करने हैं, तो आप इसको 0 से इक्वेट करिए। नाउ 2s -1 = 0, देन s = 1/2, एंड अगेन अगर इसको भी करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि इसके दोनों जीरो सेम ही है ना। 2s -1 = 0, तो s = 1/2, तो इसके जीरोस क्या है बेटा 1/2, दोनों आइडेंटिकल जीरोस है 1/2 एंड 1/2, ओके। अब रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं बेटा, अभी मैंने बताया सम ऑफ द जीरोस = क्या होगा, सम ऑफ जीरोस = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ओके। तो sum of zeros 1/2 and 1/2, both zeros are 1/2 ना, we will write 1/2 plus 1/2 here, minus coefficient of x, here coefficient of x एक्चुअली बेटा यहाँ x तो नहीं है लेकिन s है, तो हम जानते हैं कि वो वेरिएबल x रहे या s रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेरिएबल है बस, ठीक है। तो s का कोफिशिएंट ही x की जगह हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4 है। अब 1/2 + 1/2 = 1 हो गया बेटा ये, और ये क्या आ गया 4/4 = 1, ये भी 1 हो गया, तो वेरीफाइड हो गया, ओके। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 6x² - 3 - 7x। आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही नहीं है, 6x² बाद कांस्टेंट है और फिर बाद में x का कोफिशिएंट वाला टर्म है,
इसको पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, सबसे पहले ये जो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, इसको हम लोग री राइट करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल्स टू 0 लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें जीरोस निकालना है इसका, ठीक है बेटा। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 6x² है, माइनस 9x ले लेंगे प्लस 2x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन कॉमन लेना है, मैंने बताया था कॉमन लेने का भी तरीका, एक बार फिर से देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा, 6x² को कैसे लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स, और फिर माइनस 9x को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस 9x, तो माइनस 3 इंटू 3 इंटू एक्स। आप देख सकते हैं एक तो x कॉमन है, दूसरा 3 भी कॉमन है, करेक्ट, एक 3 भी कॉमन है और एक x भी कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या लेंगे, 3 और x दोनों कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन आ गया। तो 6x वाले में क्या बच रहा है, 6x² में 3x लेने के बाद 2x बच रहा है, तो 2x लिख लेंगे यहाँ पे, और इसमें क्या बच रहा है, माइनस 3x, तो यहाँ माइनस 3x लिख लेंगे हम। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख के देख लीजिएगा कि 2x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा। तो प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं हम, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने दिखाया भी था, प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच रहा है बेटा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने यहाँ -1 कर दिया था, वो -1 बेटा इसलिए किया था क्योंकि ये जो कॉमन लेने के बाद यहाँ बच रहा है और ये जो वो सेम साइन में नहीं थे, यहाँ पे दोनों की साइन +1 पे ही सेम है, तो +1 ही ले रहे हैं। अगर ये अलग अलग साइन में आ जाता तो फिर इसको माइनस करके साइन बदल देते, ये दोनों अगर अलग साइन में होते तो। यहाँ पे दिक्कत नहीं है इसलिए नहीं ले रहा है माइनस। अब 2x माइनस 3 को कॉमन ले रहे हैं क्योंकि दोनों में है, इधर से 2x माइनस 3 कॉमन लिए तो यहाँ 3x बचा, इधर +1 बचा इक्वल्स टू 0। अब क्या बेटा, अब तो जीरोस निकालने हैं, फैक्टराइजेशन तो हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, अब जीरोस कॉमन निकालने हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे आप, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, और फिर 3x प्लस 1 को अगर 0 से आप इक्वेट करेंगे, (3x + 1 = 0 आप करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। तो इसके दो जीरोस क्या क्या हैं, 3/2 एंड -1/3, ये दो इसके जीरोस हैं, ठीक है। अब अगेन हम इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे, आइए, रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square करके देखेंगे। सम ऑफ जीरोस की जगह दोनों जीरोस का सम लिख देंगे, 3/2 3/2 एंड -1/3। तो 3/2 प्लस -1/3, और इधर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका यहाँ पे, -7 है, -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6, अपॉन में 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं,
एलसीएम बेटा देखो इसमें 6 आ रहा है, और एलसीएम लेने के बाद ये हो रहा है तुम्हारा 9 प्लस -2 इक्वल्स टू 7/6। ये सॉल्व करने पे 7/6, और इधर भी क्या आ रहा है 7/6, इधर भी आ रहा है 7/6, तो हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी कर लेंगे। क्लियर? आइए उसको भी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ये रिलेशन याद रखिएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं यहाँ पे हम 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म इज हियर -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, 3 -1/2 is this side and -1/2 is coming from this side. So verified. Okay. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4u² + 8u, हमें इसका जीरोस निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मिडिल टर्म तो है नहीं, 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है ये। तो आप क्या करिए बेटा, इसमें डायरेक्टली देखिए कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लीजिए, फैक्टराइज हो जाएगा, डायरेक्टली कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन में आपका क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो u + 2 बच रहा है, u + 2 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं जैसे कॉमन मैंने लेने के लिए बताया है, वैसे ही आप कॉमन लेके देखिए, यही आ रहा है। ओके, तो अब हमें जीरोस निकालने हैं, तो हम इनको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो एक बार 4u को 0 लेंगे, तो 4u को बेटा 0 लोगे तो u इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो एक 0 तो इसका 0 ही है, और दूसरा u + 2 को 0 लेते हैं तो u इज इक्वल्स टू आएगा -2। तो दूसरा 0 है -2। क्लियर? देखो जब दोनों ही पॉलिनोमियल में वेरिएबल रहेगा तो उसका एक 0 तो 0 रहना ही रहना है। ठीक, रिलेशन वेरीफाई आप कर लेंगे। फिर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू दिस। तो जीरोस का सम मीन्स -2 + 0, क्योंकि जीरोस आर -2 and 0, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बेटा 1 सेकेंड, यहाँ x तो है नहीं, u है, तो आ जाएगा हमारा 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स u², दैट विल बी इक्वल्स टू 4। ये आएगा -2, इधर भी आएगा -2, ये हो जाएगा वेरीफाइड। ओके, ये वेरीफाइड हो गया। तो दूसरा वाला रिलेशन भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है,
तो वो हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम नहीं प्रोडक्ट। ये होगा कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है बेटा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई -2 is equals to constant is here there is no constant term। यहाँ पे देखिए constant term है ही नहीं, तो constant term नहीं है तो उसकी जगह क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4, तो आएगा बेटा 0 इक्वल्स टू 0 हो गया वेरीफाइड। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। What will be the value of t? You can factorize it by two ways. One by transposing it and taking the root, another by making it a square minus b square like this. You can rewrite this equation like this. Now a square minus b square equals to a plus b and a minus b। a t plus root 15 t minus root 15 equals to 0। Now factorization is done। अब जीरोस निकालना है तो जीरोस निकाल लेते हैं। t प्लस रूट 15 को अगर 0 से इक्वेट करोगे तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 15 एंड t माइनस रूट 15 को जब 0 से इक्वेट करोगे तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट 15 ओनली। तो दो जीरोज इसके क्या है, एक ये है माइनस रूट 15 है और एक ये है रूट 15। ठीक है, तब इसके वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशंस। ओके आइए पहले यही रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, इरेज नहीं करना पड़ेगा इसको, है ना। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं, तो क्या लेंगे, माइनस रूट में 15 इनटू में फिर रूट में 15 और इधर क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है बेटा यहाँ पे, माइनस 15 है। अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, वहाँ पे t है, ये आएगा माइनस 15 और इधर भी क्या आ रहा है, माइनस 15, इधर भी है माइनस 15, वेरीफाइड। ओके आइए अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं इसका। वो क्या है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू द माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ x एक वेरिएबल है
जैसे इस क्वेश्चन में तो x है ही नहीं, इसमें t है, तो कोई भी नहीं, x की जगह आप t समझ सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है यहाँ पे? एक है जीरो आपका रूट में 15 -15 और दूसरा क्या है रूट में 15 और इधर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। देखो यहाँ पे x वाला टर्म ही नहीं है, x मतलब t, तो t तो है ही नहीं, तो जीरो लेंगे अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो क्या है 1 है। तो यहाँ क्या आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 0 और इधर भी क्या आ रहा है 0, ये भी हो गया वेरीफाइड। ओके, ये भी वेरीफाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, तो आइए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको ब्रेक करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्या लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। आई होप कि आप लोग को ब्रेक करने आता होगा, नहीं आता होगा तो एक सेपरेट क्लास में हम उसके लिए बनाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में भी। आप देख सकते हैं इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 1 कॉमन है, तो ये ले लीजिए। अभी जैसे मैंने कॉमन लेना सिखाया था उसी तरीके से आप देख सकते हैं। x कॉमन लिए तो 3x माइनस 4 बचा यहाँ पे और इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 ही बचेगा और ये हो जाएगा 0। तो 3x माइनस 4 को अब इस बार कॉमन हमने लिया, तो इधर क्या बचा बेटा, इधर बचा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। तो आइए जीरोस फाइंड करना है इसका, ये तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब जीरोस फाइंड करना है तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4/3। ये एक 0 हो गया इसका 4/3, ये मैंने लिखा है 3। एंड दूसरा जीरोस क्या है इसका, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1, ये दूसरा जीरो है इसका। ओके, तो आइए रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, 4/3 प्लस -1, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -1 है, तो माइनस -1 ये हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3 है, ये आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे 3 आएगा, तो 4 प्लस -3, 4 प्लस -3 तो 1/3 आएगा और इधर भी क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया। ओके बेटा, अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे, वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ कांस्टेंट लिख ले रहे हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट है यहाँ पे -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लेंगे हम लोग 4/3
मल्टीप्लाई -1 कांस्टेंट में है यहाँ पे -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में है 3, ये आ रहा है -4/3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू -4/3, सो वेरीफाइड। ओके